Hi, dear viewers. Welcome to today's episode of Winning Room. For today's show, we have a guest with us who's not just any other ordinary politician. At the age of 21, he decided that he wants to dedicate his career towards serving the people of this country. And from then, there was no looking back. From being an MLA to serving as a state president of Goa BJP, and now leading up to being the member of Rajya Sabha representing the state of Goa, his path is built on leadership, integrity, and vision. May I introduce you all to Sri Sadanand Tanavade ji. Sir, Namaste. how are you today? I'm fine, thank you. Great. So, may I ask, when did you decide that you want to start your political journey? Actually, if you see, I had not decided. It accidentally it happened because I completed my 12th standard at my village, 10th standard at my village Pina. For higher studies, I came to Panaji city, my auntie's place. I was studying there and I came in contact with RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh. And at that time, Mr. Satish Don was the Pracharak over here. He is also from my village. So he took me to RSS Shakha. And accidentally, then I in the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, Vishwa Hindu Parishad. And then after completion of my education from Panjim, I went back to my village, Pirna. And then the first initially I contested Panchayat election. So people forced me to contest. So I contested and won that election. But once I won the election, at that time I was minor. I had not completed my age to be a member, to be a sarpanch of the village. Okay. So I've been disqualified at that time first. So, are you allowed to enter into this when you're being a minor? No, actually, what happens? All of my friends, because at that time when the uh, Vishwa Hindu Parishad, that Ayodhya issue was going on, so I was actively participated in that. Okay. So that moment makes me force me. All of my friends, one supporter, they told me we'll contest this election. So I was knowing that I at that time I was around 24 years, and one of my friend, he was congressman. He Oh. thought that he will elect, he will support me. Okay. So total 5 member panchayat. So out of five, 4 members of elected from my side, so BJP side. It was not symbol, but all BJP supporters. Hmm. So he told me that you just support me for the post of sarpanch. If you are not supporting, then I got your date of birth certificate. I will disqualify. I told him no issue. Whatever you wanted to do that. So after 6 months, I have been disqualified, and then that vacancy creates. But after 6 months, again when election declared, at that time I was already qualified to be a sarpanch. That so that again election, I filled the form for by election. I won the election, and again I became the sarpanch of the village. And then continue. It happens. 17 years, I have been elected for panchayat. Wow. ओके सो व्हेन यू स्टार्टेड आपका कोई मेंटर था स्टार्टिंग में इट इज़ मेंटर कोई नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली में भी ऐसा पॉलिटिक्स में कोई कोई नहीं था। मेरा जो, इफ़ यू से द मेंटर, जो जिसने मुझे उधर से उठा के संघ शाखा में लिया, और इट वाज माय सेल्फिश इंटरेस्ट भी था। आई वाज स्टेइंग विथ माय आंटीज प्लेस, सो दे डोंट हैव प्लेस टू स्पेशल रूम फॉर स्टडी। सो इफ मैं अगर शाखा पे गया तो मुझे शाखा पे जाने के बाद संघ का ऑफिस में मुझे पढ़ने के लिए मिलेगा, इसके हिसाब से मैं गया। लेकिन इट इज़ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी, and the person who took me there is Satish Don. He was at that time Pracharak of Sangha, and then he is in the Bharatiya Janata Party. And when I went back to my village, and when I got job in the Goa Telecommunication, one company, I was working there as a personal officer there. Oh. And there I met Mr. Datta Kholkar. ओके So he was also Sangha Swayamsevak, and he was also in the party. So we good became a friend, and these two people make me in the pull me in the politics. You can say that. ओके आपने कब डिसाइड किया कि आपको बीजेपी में ही ज्वाइन करना है क्योंकि मेरा शुरू में करियर जो था संघ से शुरू हुआ था, तो संघ से बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बाद में विश्व हिंदू परिषद, and in 1991 I joined Bharatiya Janata Party as a booth adhyaksha of my village. The booth number is 21 and Thivim constituency में मैं बूथ अध्यक्ष बना in 2000 1991 में। ओके और तब से लेके अब तक ऐसे कौन से
3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो आपको ऐसा लगा कि ये लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं और जिनको ओवरकम करने के बाद आपको बहुत खुशी मिली? क्या होता है कि इट इज आई हैव नॉट डिसाइडेड इनिशियली दैट आई विल बिकम अ सरपंच और एमएलए और एनीथिंग, बट क्या होता है कि जो नसीब में होता है। सो फॉर दैट पर आई ऑलवेज बिलीव दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। एक दिन में कुछ नहीं होता, यू हैव टू वर्क फॉर दैट इन द ईयर्स। और समटाइम्स और अपन आपके मन जैसे जो कोई डिसीजन होते हैं ऐसे भी नहीं होते। एक बार आपको लगता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, अरे इतना कर रहे हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बट इन पॉलिटिक्स यू हैव टू हैव पेशेंस। पेशेंस रखा तो सब कुछ होता है। In 1999, I have contested first time in the assembly, but I lost that election. Again in 2002, contested. Means party has given me the ticket. I became a MLA. 2007, I lost by only hardly 160 votes. In 2012 में मुझे टिकट नहीं दी। सो इट बिकम्स अ फ्रस्ट्रेशन, नॉट टिकट दिया तो इसके लिए मैंने एक दिन 2 दिन थोड़ा बुरा लगा। बाद में आई हैव डिसाइडेड कि मैं एमएलए बना, मैं सब कुछ इतना हूँ वो पार्टी की वजह से हूँ। एक बार नहीं दिया तो क्या होगा, वी हैव टू वर्क फॉर द पार्टी। मैंने काम किया पार्टी के लिए। तो बाद में आई बिकेम अ पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट एंड देन बिकेम आई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो ना। यूजली पेशेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। पेशेंस। सो जब आप जो मोमेंट था जिस पे यू फेल्ट कि ओके आई लॉस्ट, व्हाट थॉट मेड दैट चेंज कि ओके नो, ऐसा ऑप्टिमिज्म या क्या आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो? क्या होता है कि जितना यानी खुशी मनाना ऐसा नहीं होता। एक बार हारने के बाद भी आपको पता चलता है कि किसके लिए आप हारे हैं। सो यू कैन द थिंक इट एज अ टेक इट एज अ पॉजिटिव वे। तो जो कुछ गलतियां होती है, गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। सो दैट गलती से यू हैव टू चेंज योर माइंड, चेंज योर स्ट्रेटजी एंड अकॉर्डिंग टू यू वर्क फॉर दैट। ओके। आपके डेली रूटीन में ऐसा कौन सा हैबिट है जो अभी तक आपके बहुत सपोर्ट में आया है, वो हैबिट जो आप डेली करते हो? इट इज़ डेली इन द सेंस माई रूटीन थिंग्स एट। पहले था मुझे किसी ने कुछ कहा तो बुरा लगता था, बट फाइनली क्या होता है कि बहुत इनके बाद आपको लगता है कि यू शुड यूज इट दैट। आपका ऐसा किसी ने कुछ बुरा कहा तो बुरा नहीं लेके, यानी वी हैव टू टेक इट एज अ पॉजिटिव वे। ऐसा होता है कि इसमें भी हम खुद की इसमें सुधार भी कर सकते हैं। सो दैट वे आई एम डूइंग। ओके। और पर्सनल हैबिट्स, क्या रूटीन है आपका डेली का? पर्सनल आई एम लिटिल बिट वेरी, टाइम में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियन यानी ये एक टाइम बोला तो 1 घंटे बाद आना, ये मुझे पसंद नहीं है। आई ऑलवेज बी ऑन टाइम। सम टाइम एक बार ऐसा होता है, मैं जब कार्यक्रम में जाता हूँ लोग नहीं होते उधर, लेकिन मैं पहुँचता हूँ। बट अगर मैंने टाइम दिया तो मैं वो टाइम पे पहुँचने की 100% कोशिश करता हूँ। मैं जब घर से निकलता हूँ, अगर घर में बहुत लोग आ गए हैं तो भी मैं उनको नमस्कार करके बोलता हूँ कि मुझे जाना है, हम कल मिलेंगे। क्या होता है कि वो लोगों को मिलने के लिए 10 लोगों को 100 लोग मुझे राह देखना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो इसके लिए 10 प्लस माइनस पॉइंट आई एम लिटल बिट डिसिप्लिन, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी आई वाज अ पर्सनल ऑफिसर देयर एंड आई नो द रूटीन थिंग्स ऑफ दैट। डिसिप्लिन क्या है ये मुझे मालूम है। इसके लिए आई ऑलवेज बिलीव दैट टाइम टाइम इज मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। एंड आई ऑलवेज नेक्स्ट डे जब मैं रात को ये करके कल मेरा टाइम किधर खराब हुआ है, आई नोट दैट टाइम्स। ओके। मॉर्निंग 7 बजे शुरू हुआ तो 7 बजे से रात को 12 बजे तक मैंने क्या क्या किया। सो उसके बाद में थोड़ा जो टाइम बचता है, सो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज नेक्स्ट डे। दैट वे आई एम ऑलवेज प्लानिंग। इसके लिए मैं अलग अलग सब प्लान करके आई एम मैनेजिंग दैट। क्या ओके। होता है डू यू ऑल्सो डू एनी योगा मेडिटेशन टू एनहांस योर? मॉर्निंग, क्यों होता है कि सुबह में 1 घंटा योगा में लगाता हूँ, लेकिन जब दिल्ली में जाता हूँ तो दोनों काम होते हैं, योगा भी होते हैं और वॉकिंग भी होता है। गोवा में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि लोग घर आते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड देम ऑल्सो, बिकॉज एज अ पब्लिक पर्सन वी एज अ पॉलिटिशियन वी हैव टू मीट पीपल, वी कैन नॉट अवॉइड देम। यस। ये लोगों के लिए हमें रिस्पेक्ट मिलता है। सो उनको निगलेक्ट करने से फ़ायदा नहीं होता है। सो इधर आने के बाद होता है कि उनको मिलना होता है, लोग घर आते हैं तो उनको मिलना होता है, तो थोड़ा सा अ, खुद के एक्सरसाइज के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं सुबह का थोड़ा टाइम निकालता हूँ। ओके। आपका क्या मैसेज रहेगा जो अभी यूथ है एंड जिनको पॉलिटिक्स करियर में एंटर करना है, तो आप उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो एक ऐसा अपना गाइडलाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं?
मुझे ये लगता है कि आपका जो यूथ अभी का उसने क्या होता है, हम जब यूथ थे मुझे याद है व्हेन आई वाज अराउंड 2000, मैं स्कूल में पढ़ा था गांव में, तो मेरी हर टाइम में मुझे लगता था, मैं जब आगे बैठता था तो मुझे लगता था कि कभी कि जाके ऊपर बैठना चाहिए, स्टेज पे बैठना चाहिए। तो मुझे एक एम्बिशन था। तो मैंने उधर से बैठ के जब मैं मेरे ग्रेजुएशन हुआ और पहले बार मैंने जो स्कूल में बैठा तो एक्स स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था। तो उसका प्रेसिडेंट बना तो ऑटोमेटिकली उस स्कूल में सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट होता है स्कूल एक्स स्टूडेंट का, तो फंक्शन है उसको स्टेज पे बिठाते थे। तो मैं बोला मेरा वन एम्बिशन इज कंप्लीट हुआ है। हम्म। उसके बाद में 2015 1991 में जब मैं सरपंच बना तो हमारी जो स्कूल की चुनाव होती है हर 3 साल में, तो सब बोले कि यू आर वेरी एक्टिव, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे इसके। तो वो जो मैनेजमेंट था वो लोगों ने मुझे ले लिया एज अ मेंबर ऑफ दैट दिस थिंग। और 1992 में मैं उस मैनेजमेंट का सेक्रेटरी बना और आई वाज सेक्रेटरी फॉर ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स। ये कौन से ये मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जिस स्कूल का मैं स्कूल में। स्टूडेंट था। हाँ। वाओ। And then afterwards, last 10 12 years I am a chairman of this educational institute. So मैंने जिस स्कूल में स्टडी किया उस स्कूल का मैं चला रहा हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल। वाओ। जिस पार्टी में मैंने काम किया शुरू पार्टी का एज अ पंच प्राइम बूथ अध्यक्ष ऑफ माय पार्टी, हम्म। आई बिकेम द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। ओके। एंड जिस कंपनी में मैंने शुरू में नौकरी की, आई वॉज वर्किंग फॉर गोवा टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। बाद में वो भारती टेलीटेक हुई, एयरटेल जो है भारती मित्तल की उनकी कंपनी हुई। सो आई वॉज वर्किंग देयर एज अ पर्सनल मैनेजर देयर। सो आई लेफ्ट जॉब इन 2000। हम्म। उसका भी ये था क्योंकि फर्स्ट व्हेन आई वाज आई हैड contested election at that time. Congress was very this thing here powerful, हम्म। and that chairman of that company in Delhi, he was belongs to that supporter of that party. So they insisted me to withdraw my nomination, otherwise otherwise they will suspend me. हम्म। So मैंने बोला आपको जो चाहिए करो, लेकिन आई विल नॉट विड्रॉ माई नॉमिनेशन। हम्म। मैंने कॉन्टेस्ट किया, मैं हार गया चुनाव। हारने के बाद मैंने ऐसा किया कि उनके साथ फाइट करूंगा, वापस कंपनी में जाऊंगा, देन आई विल रिजाइन। हम्म। देन लीगल बैटल उसके साथ खेला मैंने और देन आई वॉन द केस। 1 महीना काम किया और खुद रिजिग्नेशन दे के बाहर गया एक कंपनी में। हम्म। सो फाइनली वही कंपनी का मैं चेयरमैन भी बना। ओके। यानी फाइनली जिस कंपनी में मैंने नौकरी की थी गोवा टेलीकम्युनिकेशन, वो टाइम पे दैट कंपनी वॉज अ सब्सिडरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओके। और वही कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन भी बना। तो मेरे वाह। लाइफ में दिस तीनों पॉलिटिकल लाइफ में देखो तो जिस पार्टी में करियर शुरू किया उस पार्टी का अध्यक्ष बना। स्टूडेंट लाइफ में जिस स्कूल में मैं पढ़ा, द स्कूल नाउ टेकिंग ओवर बाय मी, आई एम द चेयरमैन ऑफ द स्कूल। जिस कंपनी में नौकरी, एक ही कंपनी में नौकरी की, वो कंपनी का जिसकी ओरिजिनल कंपनी थी और ओरिजिनल कंपनी का मैं चेयरमैन भी बना। वाह। यानी पॉलिटिकली हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो, आप दैट हर इज चीज के पिनिकल पे क्रिटिकल। पहुंचे। सो मैं यूथ को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि पेशेंस होना चाहिए। हम्म। खुद में क्या होता है, पेशेंस इज द योर सेकेंड थिंग, यू शुड बी गुड अ लिसनर। हम्म। दूसरों का सुनना चाहिए। तो होता है कि अब वो बहुत कम है क्योंकि यू जस्ट सी एट दैट एज आई एम इन पॉलिटिक्स, एट दैट एज आई एम इन सोशल एक्टिविटीज, एट दैट एज आई एम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज वो उतना नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। सो माई एडवाइस टू द यंगस्टर्स, दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन सच एक्टिविटीज, क्योंकि ये लोगों ने आगे लेना चाहिए। करेक्ट। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी आज का जो यूथ है उनको मुझे लगता है कि ये उन्हीं ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश को आगे बढ़ाने के हाँ, लिए। डेफिनेटली। या तो जैसे आपने बोला यूथ को आगे लेना चाहिए, बट उनके दिमाग में एक डर भी रहता है। जैसे आपने बोला आपको इस प्रोफेशन में थ्रेड्स भी आते होंगे, बिकॉज आप पावरफुल पोजीशन पे हो, इन्फ्लुएंस की पोजीशन पे हो। तो वो भी ये सोच के बहुत लोग ऐसे डरते हैं। जैसे मैंने फीडबैक और सर्वे किया है कि जो लोग पॉलिटिकल करियर में जाना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा फियर क्या है, तो दे आर स्कैर्ड ऑफ थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। तो आपने कैसे ये थ्रेट्स को ओवरकम किया? क्या होता है कि देखो, यू एम्बिशन होना चाहिए। अगर वो एम्बिशन मिलने के लिए कुछ भी, अगर इफ़ यू कीप टारगेट देन ओनली विल अचीव दैट। और वो अचीव करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। हमें तो रेडीमेड किसने नहीं दिया, राइट फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ में
हमें एम्बिशन था कि हमारे घर में स्कूटर भी नहीं थी, तो उसमें शुरू होता है कि मैं पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई के बाद मैं कमाऊँगा, पहले स्कूटर लूँगा। अभी क्या होता है कि रेडीमेड ये सब हर घर में मिलते हैं बच्चों को। सो उनके लिए उनको हार्ड वर्क करना, ये थोड़ा दे आर अवॉइडिंग दैट हार्ड वर्क। और किसी का कोई एनिमी नहीं होता है। इफ़ यू आर लॉयल टू योर वर्क, नोबडी विल डू एनीथिंग ऑफ योर्स। हमने जब काम शुरू किया था वो टाइम पे तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी नहीं था। बट ऐसा नहीं था कि हम कब एमएलए बनेंगे, ऐसा भी नहीं था दिमाग में। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली व्हेन यू वर्क फॉर एनी दिस थिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो सब आपके आप मिलता है। मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए मैं काम करूंगा। इट इज़ नॉट That's दैट। not right. एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो नर्वस होने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये दिमाग में रखकर काम करना चाहिए। Okay. आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा सपोर्टर है जो स्टार्ट से एंड तक अभी भी है? ऐसे बहुत मेरे सपोर्टर रहेंगे, क्योंकि मैं गांव का पंचायत से पंच तो अभी एमपी भी बना, तो उनके साथ जब मैं गांव में जाता हूं तो उनके साथ ही रहता हूं। सो आई डोंट फील, आई ऑलवेज फील दैट दिस ऑल दिस पोजीशन इज़ फॉर वन डे। हम्म, टुमारो मॉर्निंग इट विल रिन्यू। हम्म, अगर मैंने सोच दिया कि आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 5 years, तो मैं मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं रुकूंगा। हम्म, आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस इज़ फॉर वन डे एंड माई हेल्पिंग नेचर। इफ़ कोई भी अगर कुछ ट्रबल में है तो उनको मदद करना, ये मेरा थोड़ा सा नेचर है। आई लाइक टू एंड आई लव फॉर दैट, तो किसी को मदद करना। तो इसके लिए मेरे नेचर में ऐसा है कि वो मैं ये हूँ, इसके लिए ये है, ऐसा नहीं है। आई एम फाइनली अ पर्सन। क्योंकि क्या होता है, ये ऑल दिस सत्ता ये वो सब आती है जाती है, रिलेशन ऑलवेज रिमेन। सो रिलेशन अच्छी तरह से रखना, यही सबसे बड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। So, you can say, अगर किसी एक के पास बच्चे हो, पैसे हो, वेल्थ, करियर हो, तो इन द एंड क्या मायने रखता है? क्या होता है कि सबको वो हासिल करने के लिए जो कुछ करना है वो नहीं किया है, दैट मीन्स दे गॉट इट रेडीमेड। हम्म, सो उनको लगता है कि सब कुछ हमें रेडीमेड ही मिलना चाहिए। पॉलिटिक्स रेडीमेड शॉर्टकट नहीं है, इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट। हम्म, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, यू हैव टू सेक्रीफाइस दैट, एंड देन ओनली विल कैन अचीव योर गोल। और सडनली जो फास्ट ग्रो होता है तो फास्ट नीचे भी नीचे भी आता है। जाता है। स्लोली स्लोली यू हैव टू go on. Go on. So in that way you will get good experience also and good exposure also. हम्म, And for that it is always better. लेकिन आज के बच्चों को लगता है कि मुझे तो घर में सब रेडीमेड मिला है, तो पॉलिटिकल चेयर भी मुझे रेडीमेड मिलनी चाहिए। नहीं मिलता है। हम्म, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। right. यू हैव टू डू द दिस थिंग। समाज सबकी एजिटेशन किया और ऊपर ऐसा नहीं है। लोगों को मिलना जो ना, एक बार लोगों ने पसंद किया तो पीपल विल आपके पीछे रहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सब लोग पैसे के लिए रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने भी चुनाव जो लड़े, हमने किसी को पैसा नहीं दिया था। हम्म, जब पंचायत में इतनी साल से चुन के आए, किसी को पैसा नहीं दिया। एमएलए बना तो किसी को पैसा दे के नहीं आया। हम्म, लेकिन इफ़ यू वर्क हार्ड, यू कीप गुड रिलेशन, लोग वोट डालते हैं, चुना के भी लेके आते हैं। ओके। आजकल के यूथ में भी जो एक चीज़ बढ़ रही है वो है बर्नट आउट। हम्म। लोग ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो बहुत जल्दी रैपिडली बर्नट आउट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन, काम, स्ट्रेस वगैरह। तो आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया और जब आप पीक पे थे, आपको ऐसा बर्नट आउट फीलिंग कभी आया? आई नेवर, ऐसा मुझे कभी नहीं। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन वेर एवर आई एम ऑलवेज हैप्पी। हाँ। क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी सभी सब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन स्पीच इज ऑलवेज एड्रेस कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता। अगर किसी कोई पंच बना पंचायत का, उसको लगता है सरपंच बनना चाहिए। सरपंच बना तो भी वो हैप्पी नहीं होता है, उसको बोलते हैं, उसको लगता है कि वो जिला पंचायत बने अध्यक्ष। सर जिला पंचायत बना बना तो उसका लगता है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहिए। हम्म, उधर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको लगता है कि विधायक बनना चाहिए। विधायक बना तो उसको लगता है कि मुझे मंत्री होना चाहिए। हम्म, मंत्री भी मिल गया उसको तो बोलते हैं अच्छा मुझे अच्छी अच्छी ये मिलनी चाहिए, वो अपना कैबिनेट में अच्छी अच्छी खाती मिलनी चाहिए। हम्म, उधर भी वो सेटिस्फाई नहीं, उसको लगता है अभी मुख्यमंत्री बनना है। सो त्या क्या होता है कि ह्यूमन कितना भी कुछ मिले वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो मेरा स्वभाव अलग है। वेर एवर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। हम्म। क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू गोइंग गोइंग ऑन गोइंग ऑन। सो ये होता है, इसके लिए यू शुड बी हैव सेटिस्फैक्शन।
आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है अपने काम में? काम भी एक अच्छा होता है कि किसी को मदद करना, ये बहुत खूब सेटिस्फेक्शन है। और क्या होता है कि जिसके लिए हम काम करें, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जो काम करता है, इट इज़ फॉर द नेशन इंटीग्रेशन। क्योंकि जिस तरह से आज देश आगे बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, तो हमें ये सेटिस्फेक्शन है कि हम उनके पार्टी के लिए काम करते हैं। और जब राज्यसभा में मैं मेंबर बना, तो उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे मिलना बहुत अच्छा फील होता हूँ। और मुझे एक लगा कि जब मैं व्हेन द फर्स्ट आई वेंट टू द पार्लियामेंट, हुँ। क्योंकि मैं तो असेंबली में विधायक था, लेकिन असेंबली में काम करना और बड़े पार्लियामेंट में करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये तो गोवा इज़ अवर वेरी स्मॉल स्टेट। या और जब हम दिल्ली में जाते हैं तो हमें भाषा का भी प्रॉब्लम होता है, वी कैनॉट स्पीक इन फ्लुएंटली इन हिंदी, क्योंकि डर लगता है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। तो मैंने जिस दिन उधर शपथ ली पार्लियामेंट में, तो पहला दिन हुआ कि जैसे हम छोटे बच्चों को जब घर में छोड़ते हैं, तो मेरी क्लास किधर है वो ढूंढने में जाती है, वही तरह से हमारा होता है, क्योंकि उधर लोकसभा और राज्यसभा ओके। दिखने में सब दिखता है। हुँ। तो एक दिन मैं नेक्स्ट डे जब गया तो मुझे लगा कभी किधर जाऊं, तो मैंने किसी से पूछा, उस इसने सिक्योरिटी अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कोई था, वो इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया। तो बोला भाई साहब एक करो, जब आप रेड में पहुंचेंगे तो समझो कि यू आर सही में रेड कारपेट में चले, यानी राज्यसभा में है। अच्छा। अगर ग्रीन में पहुंचे तो समझो कि यू आर इन द लोकसभा। मैं एक दिन पहले गलत से लोकसभा में घुसा अंदर, क्योंकि बाद में पता चला हाँ। ऐसा ऐसा करना। सो पहले दिन जब मैंने शपथ ली, so next day, first day, I saw that all intellectual of the countries, all senior politicians are sitting in the Rajya Sabha. वॉव! अच्छे स्पीच करने वाले सब लोग राज्यसभा में आते हैं। तो नेक्स्ट डे मैंने बोला कि अगर मुझे डर लगा तो मैं आगे स्पीच नहीं दूंगा, एक कोशिश तो करे। हुँ। सो नेक्स्ट डे पहले दिन शपथ लिया, मुझे अभी भी याद है, 31 जुलाई को मैंने शपथ ली थी। और 1 अगस्त 2023 में मैंने पहला भाषण दिया था लोग राज्यसभा में। वॉव! सो आई ट्राइड फॉर दैट। मैं समझा, मैं उधर बैठा बैठा ये कर रहा था, अरे आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज, स्मॉल फैमिली, और राज्यसभा में मैं कैसा बात करूँगा। हुँ। एक मन रहा था, दूसरा मन मुझे पता रहा था अगर आपने आज नहीं किया तो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं करेगा, वो डर के पीछे रहेगा। हुँ। सो आई मेड अ डेयरिंग, डेयरिंग करके मैंने भाषण भी किया, थोड़ा छोटा मोटा, थोड़ा हिंदी में थोड़ा गलती हुआ, हुँ। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग स्पीचेस इन द पार्लियामेंट। वॉव! सो इंस्पायरिंग। तो जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जब वो सेशन चल रहा होता है तो पीपल गेट अग्रेसिव एंड वैसे बातें, हाउ डज इट लुक लाइक इन राज्यसभा? इट इज़ क्या होता है कि पॉलिटिकली वैसा ही होता है, व्हेन वी आर सिटिंग इन द हाउस, इट इज़ ऑलवेज अपोजिशन। एंड लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, तो जब हम कैंटीन में चाय पीते हैं, तो वी डोंट हैव एनी एनिमिटी। इट इज़ नॉट, वी आर नॉट टेकिंग इट एज अ पर्सनल, हुँ। इट इज़ अ पॉलिटिकल। एंड वी आर रेजिंग आवर पार्टीज इशू, दे आर रेजिंग देयर पार्टीज इशू। इसमें पर्सन लेने का कोई मतलब नहीं है, और वी आर नॉट टेकिंग ऑल्सो। ओके। एंड आप, जैसे आपने बताया आप मोदी जी से इतनी बारी मिले हैं, उनके साथ रहे हैं, तो उनका ऑरा कैसा है? लाइक आपको उनके बारे में क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो बहुत पसंद है एंड यू लुक अप टू हिम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आई एम फ्रॉम हिज पार्टी, और ऐसा नेता, जो नेता इस देश के बारे में सोचता है, ये देश आगे जाना चाहिए, यही उसके माइंड में है। और फॉर मैनी ईयर्स इज़ ऑलमोस्ट, पहले तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर, ऑलमोस्ट फॉर 25 ईयर्स एज अ पॉलिटिकल लीडर। पहले तो संगठन का काम करता था, लेकिन आप मुख्यमंत्री हो, बाद में प्रधानमंत्री हो, अभी तक उसके ऊपर एक दाग भी नहीं है करप्शन का। हुँ। और देश को आगे कैसा लेना है उसका, और कुछ नहीं। मैं हमें बहुत बार, हम जब बाहर जाते हैं अलग अलग स्टेट में काम करने के लिए, बहुत बार कार्यकर्ता में डिस्कशन भी होते हैं। हमें तो फैमिली है, हम घर जाने के बाद कोई तो हमें पूछेगा कैसा हुआ, क्या हुआ, हुँ। तो थकवा थोड़ा दूर जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में अलग है। वो पूरा देश में काम कर करके रात को खाना जो भी उसका कुक कुछ बनाएगा वो खाएगा, किससे बात करेगा, वो किससे बात भी नहीं कर सकता रात को। हुँ। तो अपने बेड पर कल देश के बारे में सोचते सोचते सोएगा, कल देश के लिए क्या करूं। हुँ। और इस आदमी के साथ काम करते समय जब उसके मिलते, ये अलग ही हो रहा होता है। एक
उसको देखने के बाद, उसको मिलने के बाद, जिस तरह से वो पूछता है, जिस तरह से वो बात करता है, वो देखे तो इस अलग ही है कि हमारा देश नंबर वन बनेगा, एक कॉन्फिडेंस है हमें। हम्म क्योंकि हर क्षेत्र में उसको नॉलेज है, हर क्षेत्र में कैसा आगे जाना है, क्योंकि उसको सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। हम्म उसको मुझे कुछ मिलना चाहिए इंटरेस्ट नहीं, और वो करके लेगा भी क्या, किधर लेके जाएगा। हम्म और इसके लिए देश का अच्छा होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए, देश के लोगों को आगे लेके जाना चाहिए। देश का गरीब अगर भूखा सोया, वो नहीं सोना चाहिए। इसी तरह का उसका ये, सो ही इज़ वेरी ग्रेट पर्सन। वाह ओके। आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जिस पे आप सबसे मोस्ट प्राउड हो, जो आपने एक हेल्प कर दी, या क्या है जो आपके माइंड में लाइक एक एक बैठ चुकी है कि वो आपको बहुत खुशी देती है वो अचीवमेंट? क्या होता है कि इन पब्लिक लाइफ में, जब से शुरू से पंचायत से विधानसभा तक, विधानसभा से लोग राज्यसभा तक, जो जो काम करने का मुझे मौका मिला, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर दैट। ऐसा स्पेसिफिक मैं एक नहीं बता सकता कि जब मैं सरपंच बना तो मुझे सेटिस्फेक्शन लगा, चलो मैं सरपंच तो बना। जब मैं विधायक बना तो सोचा कि आई एम बिकेम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड जब मैं लोग राज्यसभा में गया तो मैं ऐसा मौका मिला, क्योंकि राज्यसभा में पहले बार जब गया तब मैंने पुराना जो पार्लियामेंट हाउस था उसमें बैठने का मौका मिला, और उसके बाद में नए पार्लियामेंट में बैठने का भी मुझे मौका मिला, क्योंकि आई एम द लकीएस्ट कि दोनों पार्लियामेंट में बैठने के मुझे मौका मिला। दैट इज़ मोर सेटिस्फैक्शन। और गांव से आने तक, दिल्ली तक पहुंचने का जो मान मिला, और वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी in the world, यस। and political party, and as a primary membership, and as a ruling party all over India, ये मुझे सेटिस्फेक्शन है कि आई एम द मेंबर ऑफ दैट पार्टी। एंड ये पार्टी ने जो भी कुछ दिया, माइनस दैट माई पार्टी, आई एम जीरो। मीन्स आई एम वर्किंग, डूइंग हार्ड वर्क, एवरीथिंग, बट मेरे पीछे पार्टी है। दैट इज मोर सेटिस्फेक्शन मुझे, एंड आई एम प्राउड ऑफ प्राउड दैट ऑफ एक्चुअली। दैट प्राइमरी पर्सन। ग्रेट। सो आपने जैसे बोला आप लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने काम देखे, आप बैठे हो, आपने वहाँ पे काम किया, एंड देन नाउ राज्यसभा में, वो क्या डिफरेंस है जो एक स्टेज पे आपने ऑब्जर्व किया क्या फ्रॉम होता है, लेजिस्लेटिव टू राज्यसभा? क्या होता है कि लेजिस्लेटिव जो पार्टी होती है, यानी एमएलए जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी, यानी असेंबली, असेंबली इज रिलेटेड टू योर स्टेट, योर कॉन्स्टिट्यूंसी। और हमारी तो छोटी स्टेट है। इफ यू सी द देश की सबसे छोटी स्टेट सिक्किम है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज सिक्किम है, लेकिन एरिया वाइज देखे तो गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। यस। स्टेट। और ये स्टेट में से जब हम दिल्ली जाते हैं, इससे एक्सपोजर मिलता है, पूरा देश के अलग लोगों को मिलना होता है, और देश के बारे में भी उसको आपको उसकी नॉलेज बढ़ती है आपकी। ओके, नॉलेज। और अलग अलग लोग मिलते हैं, आपको भी उसके पर्सनल इसमें फ़ायदा मिलता है। मैं जब इधर से, मैं वही बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम उधर गया तो मुझे दिक्कत था, मैं हाउ आई विल स्पीक। तो बाद में क्या होता है, अलग अलग स्टेट से लोग मिलने के बाद अलग अलग स्टेट के बारे में भी जानकारी मिलती है, और देश के लिए कुछ करने का एक मौका मिलता है। राइट। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अलग अलग कंट्रीज जो है, फॉरेन कंट्रीज, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी बनाई। और वो कमेटी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी नहीं है, अलग अलग सब पार्टी के, अपोजिशन के, सब रूलिंग अपोजिशन, और 10-10 लोगों की कमेटी बनाई, और उसका एक चेयरमैन और बाकी 10 मेंबर इज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यूक्रेन और इंडिया का रिलेशनशिप का जो, फ्रेंडशिप का जो करने का जो कमेटी बनाया है, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। वाओ। एंड ये अगर मैं इधर रहता तो ये मुझे मिलता, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंटरनेशनली। यस। सो दिस कमिटी विल कीप रिलेशन विथ यूक्रेन, या। वी विल गो देयर, दे विल कम हियर। क्योंकि आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन प्रधानमंत्री जी ने ये किया, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के टाइम पे जब सिंदूर ऑपरेशन किया, उसके बाद में पूरे देश में अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा गया। सो बाद में वो टाइम पे उसको होगा कि इसका फ़ायदा है, इसके लिए इमीडिएटली
उन्हें अभी अलग अलग ये अपने कमिटी फॉर्म की अलग अलग राज्यों के लिए और अलग अलग देशों के लिए। हम्म। अमेरिका के लिए ये कमिटी, ऐसे ऐसे अलग अलग कमिटी की। सो यू विल गेट गुड एक्सपोजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल्सो यू कैन वर्क इन टू दिस थिंग, और वर्क विद पहले ऐसा नहीं था कि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम्म। वो ऐसे बहुत यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ऐसे नए 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 इंट्रोडक्शन जो करने वाला अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वाह। और ये इन्होंने इसलिए किया ताकि हमारे रिलेशंस या यू अच्छे कैन हुए। कीप योर रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशन, क्योंकि हम भी पॉलिटिकल पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वही देशों के भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करें, इसके ओके। लिए बनाया है फ्रेंडली रिलेशन। फ्रेंड रिलेशन, ओके। तो आपने जैसे गोवा से अपनी जर्नी स्टार्ट की, उस टाइम पे गोवा जैसा था और अब गोवा जिस मुकाम पर है, आप क्या डिस्क्राइब करोगे कि ऐसा क्या मेन बदलाव आपने देखे जो कि अच्छे भी हैं और नॉट सो गुड? क्या है कि आफ्टर 2000 के बाद जैसा देखो तो गोवा में टूरिज्म सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हम्म। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देखें तो आफ्टर बीइंग अ वेरी स्मॉल स्टेट, सेंट्रल आफ्टर 2014 जिस तरह से केंद्र ने गोवा के लिए मदद की है हर क्षेत्र में, बड़े बड़े रोड बनाने के लिए, क्योंकि गोवा इज़ अ वेरी स्मॉल, अपना बजट भी उतना नहीं बड़ा नहीं होता है। तो जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े प्रोजेक्ट आने आने हैं इधर, तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट ये हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हर क्षेत्र में, यानी पत्रा देवी से अपना, यानी पेडणे पत्रा देवी महाराष्ट्र बॉर्डर से पुणे नाके तक, यानी पुणे बॉर्डर तक, यानी कर्नाटका बॉर्डर कारवार के पहले, ये जो भी हम बड़े बड़े रोड देखते हैं ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया है। ओके। जो भी इधर पंजिम का 3rd ब्रिज, अटल सेतु, यस। जुआरी ब्रिज, कानकोणा में ब्रिज, जो भी ब्रिज है, कोलवाड़े में दूसरा ब्रिज, ये सब ब्रिज किए। तो इसके लिए गोवा की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है। गोवा छोटा होने के बावजूद भी गोवा में 2 एयरपोर्ट है, एक दाबोली एयरपोर्ट और दूसरा Yes. मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा। या। यानी गोवा जैसी छोटी स्टेट में आज 110 फ्लाइटें आती है जाती है, यानी आने वाली जाने वाली ट्रिप देखी तो इट कम्स 220 ट्रिप्स, आने का 110, जाने का 110। यानी हमारा पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन से कितना भी, आवर पॉपुलेशन इज ऑफिशियली अराउंड 16-17 लैक्स, लेकिन हर टाइम जो टूरिस्ट आते हैं इट इज़ मोर देन 90 लैक्स। सो इसके लिए ये लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरी है। Yes. ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमारे केंद्र से बहुत पैसा दिया, दिस डेवलपमेंट आई एम सेइंग। लेकिन मुझे लगता है कि गोवा में लोग आते क्यों हैं, क्योंकि लोगों को ये ब्यूटी चाहिए, नेचर चाहिए, एंड हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमने ये सब मेंटेन करके रखना चाहिए। और कल गोवा हमारा दिल्ली जैसा हुआ तो गोवा में कोई नहीं आएगा। और इसके लिए गोवा, दिल्ली या बाकी राज्यों में समझो कि गोवा में लोग आते हैं, बाकी जगह भी बीचेस है, लेकिन गोवा का पाउंडचार जो है, यानी हमारा जो लोगों को मान सम्मान करने का जो तरीका है अलग है, एंड गोवा इज फेमस फॉर दैट। यस। सो अगर ये आना चाहिए देन वी हैव टू मेंटेन अवर गोवा। हमारा जो ये है, जैसा गोवा है वैसा हमने ना, इसके लिए थोड़ा डेवलपमेंट करने के लिए भी चाहिए। ऐसा नहीं है इधर कुछ हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू डेवलप। और ऐसा भी नहीं होता आप कोई इधर नहीं आ सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता है, बिकॉज वी कैनॉट पुट कंडीशन। और हमारी सरकारें कंडीशन डालना ही नहीं चाहती। जैसा जम्मू कश्मीर में 370 कलम हटा दिया, आज कोई भी जाके जम्मू कश्मीर में सेटल हो सकता है। अगर हम देश एक बोलते हैं तो सब देश में हर एक को उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा गोवा डेवलप होना ही चाहिए, हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जैसा बता रहे कि बाई 2037 गोवा विल बी द, जैसा विकसित भारत 2047 जो मोदी जी का सपना है, कि बाई 2047 हमारा देश इस वर्ल्ड में नंबर 1 बने। और इसके लिए आज अगर हम देखें तो वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यस। एंड हमारे आगे कौन है? जर्मनी है 3rd लार्जेस्ट, सेकंड में चाइना है और फर्स्ट में अमेरिका है। जर्मनी और हमें थोड़ा डिफरेंस है, यानी आने वाले बाय 2027 अगर देखते उतने तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एंड बाय 2047 हमारा देश विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनेगा।
सो ये विजन लेके हमें काम करना चाहिए, और उसी दृष्टि से मुझे लगता है गोवा भी आगे जाएगा, और अच्छी तरह से सब मेंटेन करके गोवा का डेवलपमेंट भी और भी तेज़ी से हो जाएगा, ये मुझे लगता है। ओके। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका 5 ईयर विजन ऑफ गोवा क्या है? मैं आप गोवा को कहाँ देखना चाहते हो 5 साल के बाद? मैं गोवा को 5 साल के बाद ये देखे, क्योंकि क्या होता है कि इफ़ यू सी एज अ गोवा एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, अदर स्टेट्स, हाईएस्ट जीडीपी रेट में हम है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, हम्म। और हर एक को हर फैसिलिटी देने की कोशिश इधर होती है। और लेकिन ये करते समय हमारा गोवा ये पूरी तरह से जो टूरिस्ट आता है उसको अच्छी तरह से फैसिलिटी इधर करने की कोशिश हमने करनी चाहिए। वी हैव टू डेवलप सम आर्टिफिशियल दिसिंग। अभी तो गोवा में जो है वो बीचेस है, टेम्पल्स है, चर्चिस है, सब है, लेकिन और भी गोवा क्योंकि लोगों के बाहर के लोगों को गोवा लगता है सिर्फ बीचेस, बियॉन्ड बीचेस भी गोवा है, यस। वो भी देखने के लिए अलग अलग सिस्टम से आपके लिए वो डेवलप क्या करना। है? मुझे लगता है कि ये हमने कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए वी हैव टू मेंटेन दैट दिस थिंग। उसको हमने उधर आके अगर हमने बिल्डिंग खड़े की है तो हम नहीं कर पाएंगे। जो है वो डेवलपमेंट वही हिसाब से होना चाहिए, दैट विल बी एक्सेप्टेबल, सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और वो जो टूरिस्ट आता है और जो अट्रैक्शन उसके लिए, वो अट्रैक्शन उसके लिए हमने रखना चाहिए, ये Right. मुझे लगता है। आपके लिए गोवा व्हाट इज बियॉन्ड गोवा जो बाकी लोगों को नहीं पता? नो, वो वही बताया कि उनके लिए जो गोवा में अगर हम देखें तो लोगों ने सिर्फ गोवा वो बीच पे देखा है, सैंड सी, ऐसा ही उनका जो मन में है। गोवा इज बियॉन्ड दैट। अगर आप देखो, आज से होली शुरू होती है, हमारे पूरे देश में होली सिर्फ 2 दिन की होती है, कल रंग लगाए होली फिनिश। मैं हमारे सांसद को सबको भी वही बताता हूँ, गोवा इज सेलिब्रेटिंग होली फॉर मोर देन 15 डेज। आज से जो शुरू होगी तो 15 दिन तक चलेगी होली। यस। दिस इज ओनली इन गोवा। या। अलग अलग विलेज में अलग अलग तरीके में बनाते हैं। नवरात्रि उत्सव जो होता है जितना बाहर होता है उससे ज़्यादा उत्सव इधर भी होता है। हाँ। सो गोवा इज फेमस फॉर एवरीथिंग। या। सो वो भी लोगों ने देखना चाहिए अलग, क्योंकि वो लोगों को वो साइड पे टेम्पल साइड में, विलेज में गोवा कैसा है, फॉरेस्ट में जाके गोवा कैसा है, ये लोगों को टूरिस्ट को देखने के लिए हमने अलग तरीके से अभी कर रही है सरकार, लेकिन और भी थोड़ा स्पीड से होना चाहिए, ताकि लोग सिर्फ बीच के लिए नहीं, इधर आयुर्वेदा के लिए लोग आने चाहिए, या। इधर मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आने चाहिए। यस। सो इसी तरह से हम गोवा लोगों के सामने प्रोजेक्ट करना चाहिए। ओके। तो जैसे आपका पॉलिटिकल करियर है, आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, आप पूरा दिन यू आर बिजी इन योर पॉलिटिकल एंडियवर्स, फिर आपको दिल्ली ट्रैवल करना आता है राज्यसभा के लिए। आप हाउ डू यू गिव टाइम टू योर पर्सनल लाइफ? इसमें यही होता है, इसमें सेक्रीफाइस जो होता है तो फैमिली का ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि विदाउट देयर सपोर्ट यू कैन नॉट अचीव ऑल दिस थिंग। राइट। समटाइम तो ऐसा होता है कि दिल्ली, अभी मैं केरल के चुनाव का भी प्रभारी हूँ, तो कभी केरल जा गए। वैसे पहले मैं तेलंगाना का प्रभारी था, उसके पहले महाराष्ट्र का था। तो एक बार चुनाव लगा, मैं आज ही केरल से आज ही आया हूँ। ये 2 दिन में फिर मुझे दिल्ली जाना है, फिर इधर वापस केरला। सो इसके लिए फैमिली को जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट दे ऑल्सो एडजस्टिंग। उनको भी लगता है कि ही इज़ डूइंग, जो भी कर रहा है इस नेशन के लिए कर रहा है। और सम टाइम अभी कभी टाइम मिलता है तो कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने अगर मिला टाइम तो हम खाने के लिए साथ में किसी होटल में जाते हैं। अदरवाइज वी डिडंट गेट द टाइम किधर फैमिली का। सम टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि हम फाइनल करते हैं कि आज जाना है, उनको बोलते हैं कि 4 बजे आना है, तो सडनली इफ मीटिंग्स कम इट हैज़ टू बी कैंसल करना पड़ता है। तो बुरा नहीं मानते, दे आर नो दैट They're adjusting. दे आर Support करते सपोर्ट हैं. इज इम्पोर्टेंट, एंड Yeah. देयर फैमिली सपोर्ट इन दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। या। और वो सपोर्ट शुरू से मुझे मिल रहा है। मिल रहा है। और क्या होता है, एज अ पॉलिटिकल हमारे घर में तो बहुत लोग आते जाते हैं, सो सबके लिए हम इतना ही वैल्यू देते हैं। मैं सुबह अगर चाय पीने के बैठा, अगर मेरे वो टाइम पे कोई आ गया तो मेरे साथ वो भी चाय पिएगा, कोई अरे भी हो। वाह। दैट वी ऑलवेज, इट इज़ माई हाउस इज़ ओपन। To all. तो ये हमारे घर में है, सिस्टम है, और हमें भी ऐसा नहीं है बहुत लोग कैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और फैमिली ऑल्सो यूज टू दैट। या।
You know, one thing very, very distinguishing about you, which I've studied and I've noticed since I've grown up in Goa, is your full history, your work, your endeavors are all so positive. So they have that positive energy. Everything is so clear, cut and clear. What is there is what it is. I'm sure people have tried to, थोड़े बहुत ऐसे accusations आते हैं और पॉलिटिक्स पे होता रहता है. आपने कैसे मेंटेन किया इतना पॉजिटिव पर्सनालिटी? ये देखो क्या होता है, एज अ पॉलिटिकल लीडर लोग देखते समय अलग दूसरे से देखते हैं. हम्म. सो खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे लगता है. ओके. लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, कोई अच्छा बोलेगा, किसी का काम नहीं हुआ तो गालियां भी देगा. सो वी हैव टू सी दैट, टेक इट एज पर. वो जो कुछ बोलता है मेरे पर्सनल नहीं है, इट इज़ फॉर माई पोजीशन. समटाइम किसी को बोला मैंने करूँगा, अगर नहीं हुआ तो ये पर्सनल, मैं एमपी हूँ या एमएलए था, इसके लिए मेरे पास नहीं हुआ है. सो दैट वॉट एवर बैड थिंग इज सेइंग, इट इज़ फॉर दैट पोजीशन. और मैं सबको बोलता हूँ, मैं मेरे ड्राइवर को भी बोलता हूँ, हम जब कभी फंक्शन में गए, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो मुझे मत बताओ. क्योंकि क्या होता है, अगर उसने मुझे कुछ बोला और इसने मुझे बताया, तो जब मुझे वो मिलेगा तो मुझे मन में हो रहेगा, अरे इसने तो कुछ मुझे बताया है, बोला हाँ. है. तो मैं बोलता हूँ कभी मत बताओ मुझे. हम्म. क्या होता है, आज बोलेगा, कल वो अच्छा भी बोलेगा. लेकिन एक बार मुझे पता चला कि वो मुझे गलत बता रहा है, बोल रहा है, तो मैं उसके बारे में गलत सोचूंगा. इसके ओके. लिए सोचने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं बतानी चाहिए. बोलता है ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर दैट पोजीशन. तो ये एक कान में सुनना, दूसरे कान में छोड़ देना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. हम्म. तो क्या होता है, अगर ये सुना, अरे क्यों यार इसने मुझे क्यों कहा, ये अगर ये किया, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर मी ऑल्सो. एंड अननेसरी वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन सच नॉनसेंस थिंग्स, ऐसा यस. मुझे लगता है. और नहीं करता हूँ मैं. मोस्ट ऑफ टाइम्स मैं मेरे न्यूज़पेपर प्रेस मीडिया को बोलता हूँ, कभी आपने अगर गलत लिखा, इट डजेंट मीन समथिंग रॉन्ग. हम्म. आप जो भी लिखते हैं, अच्छा लिखना या अच्छी, ये बात नहीं है. आपने कुछ बुरा लिखा तो ये हम उसके बारे में सोच सकते हैं. आई ऑलवेज टेक दैट इज पॉजिटिव वे, एंड उसके ऊपर मैं काम करता हूँ. वाह. ऐसा करना, सो सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझे फीडबैक की यू शुड तरह. नॉट फीडबैक हम्म. लेनी चाहिए. और फीडबैक अच्छी दी थी नहीं, मैंने अभी, क्योंकि हर क्षेत्र में हम काम करते करते सीखना चाहिए. हम्म. मैंने अभी एक भाषण दिया, भाषण देने का मैं 4 लोगों को पूछता हूँ, मुझे अच्छा लगा ये मत बताओ, मेरा किधर बुरा लगा यही मुझे बताओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू करेक्ट दैट करेक्ट थिंग. दैट. या. हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? क्योंकि इस प्रोफेशन में स्ट्रेस तो होता है फॉर श्योर. हाँ, इट इज़ डेफिनेटली स्ट्रेसफुल. शुरू में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बट फाइनली क्या होता है, यू यूज टू दैट होना चाहिए. ओके. स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब व्हेन यू आर इन द पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स कम्स एज अ. शुरू में तो बहुत एजिटेशन में बहुत अलग अलग केसेस भी मेरे ऊपर थे, लेकिन दैट केसेस इज़ नॉट फॉर माई पर्सनल. जैसे ऐसा एक भी कोर्ट नहीं था जिस कोर्ट में मैं नहीं खड़ा रहा हूँ. चाहे वो पेंजिम का कोर्ट हो, मापसा का कोर्ट हो, नहीं तो बिचौलिम का कोर्ट हो. अलग अलग एजिटेशन में, अलग अलग केसेस में मेरा नाम था. सम क्रिमिनल केसेस भी थे, लेकिन उसमें मेरा क्लियर हो गया क्योंकि मेरा उसमें नहीं था. लेकिन पॉलिटिकल कुछ होते हैं, वो टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस शुरू में होता है. लेकिन मैंने, मेरा शुरू से जो पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुआ वो कोर्ट केस से ही हुआ, क्योंकि मैं पहले सरपंच बना तो मेरे ऊपर पहला केस वो टाइम पे आया था. एट दैट आई वाज वेरी है. सो वो टाइम पे होने के बाद, वो टाइम पे थोड़ा बुरा स्ट्रेस. लगा, हाँ. स्ट्रेस. बाद में आई एम यूज टू दैट. बाद में बहुत केसेस भी, बाई 2005 के बाद, मैं व्हेन आई वाज एमएलए इन 2002, 2005 में हमारी सरकार गिरी थी और कांग्रेस सत्ता पे आई, तो कांग्रेस ने इतने केसेस डाले थे अलग अलग इसमें. तो क्या करें, आए तो वी हैव टू फेस दैट. तो 14-15 तक केसेस चले, बहुत केस, थोड़े केसेस तो सुप्रीम कोर्ट तक चले, लेकिन सही सलामत बाहर आया उसमें. आपको कुछ करेज कैसे मिला, मतलब स्ट्रेस ना लेने की देखो, ये करेज? तो मैं, आई एम नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. हाँ. ओके. मेरे मन मन पर्सनल. कहता था आई एम या. नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वाई वरी. मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना. जो भी है वो केसेस है कि इन्वॉल्व करने के लिए होते हैं, और इसके लिए उसमें गलती नहीं है. जो भी है फैसला है कोर्ट दे देगा. सो आपको भगवान के विश्वास होना चाहिए. सो आई बिलीव इन गॉड. You believe मुझे there's a मालूम था higher power protecting you? 100%. आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड. और इसके लिए मुझे लगता था कि
आ गई है केस केस कभी तो उसका निर्णय भी हो जाएगा, हम्म, और जो फैसला होगा दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैसला। तो बाय ग्रेट ग्रेड ऑफ गॉड ग्रेस ऑल जो फैसला हुए दैट ऑल फैसले मेरे फेवर में हुए, okay. किसी में भी मुझे ये नहीं किया। Hmm. तो सब फैसले मेरे फेवर में Acha, हुए। self belief is also Yeah. important. That's great. What is your message to the women who want to come into political career? क्या होता है कि सभी लोग बताते हैं कि एम्पावर्ड महिला को सशक्तिकरण करो, उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल असलियत में एम्पावरमेंट शुरू हुआ मोदी जी आने के बाद। Hmm. उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और आज जब कभी भी किधर भी हम जब जाते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आज महिला हर क्षेत्र में काम करती है, खुद के पाँव पे है, लखपति बन गई है, और उनके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट पूरी सरकार कर रही है। और अभी इसके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मोदी जी ने, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, उसमें रिजर्वेशन 33%, वो भी जो ये लॉ है वो भी उसमें पास किया है। और मुझे लगता है कि आज ये फील्ड जो है इज़ ओपन फॉर वुमन, एंड इफ़ यू सी ऑल ओवर इंडिया, ऐसा ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में महिला नहीं है। हर क्षेत्र में महिला इस आगे आ रही है, चाहे वो विमान के पायलट हो, अच्छे पत्रकार हो, अच्छी प्रोफेशनल हो, अच्छी बिजनेसमैन हो, अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे डॉक्टर। और अगर आप देखें तो स्कूल का रिजल्ट आपने अगर देखा तो हाईएस्ट किसको मार्क मिलते हैं, तो लड़कियों को हाईएस्ट मार्क मिलते हैं। Hmm. मेडिकल में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, लड़कियां हैं। इंजीनियर कॉलेज में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं। सो नाउ दे आर कमिंग आगे है। और मेरा युवा भारत का ऐसा एक प्लेटफॉर्म मोदी जी ने किया है, और उसी प्लेटफॉर्म में अलग अलग क्षेत्र के यंगस्टर्स जो है उनको ज्वाइन होते हैं, Hmm. उनको फॉलो करते हैं, और ऑन द वे इनडायरेक्टली दे आर कमिंग टू पॉलिटिक्स। इसके लिए भी ज़्यादा कोशिश हो रही है। उनके लिए सेफ है वुमेन के लिए पॉलिटिक्स? 100% नथिंग अनसेफ तो कुछ नहीं है। क्या होता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, इसके लिए काम करना पड़ता है। और मुंगेरी लाल की हसीन सपने नहीं देखने, सपने सच्चे होने चाहिए। वो फॉर टू गेट सच्चे होने के लिए यू टू वर्क हार्ड, और एक दिन में नहीं होते, इसके लिए टाइम लगता है। और पेशेंस। मैं यूथ को सब एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखो, आप यू विल फुलफिल योर ऑल आइडियाज़, एम्बिशन जो भी हो फुलफिल हो जाएगा। पेशेंस होना ज़रूरी है, जरूरी है। पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ये दोनों एंड हार्ड वर्क ऑफ and कोर्स. hard work is definitely, without hard work is not possible at all. So before we proceed to the rapid fire round, I have this one tiny question ki what do you do to de-stress yourself? टी स्ट्रेस क्या होता है कि शुरू में थोड़ा होता था कि थोड़ा किसने ये बोला तो स्ट्रेस लेने। फाइनली क्या होता है, व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स, व्हेन यू आर इन सोशल वर्क, ये स्ट्रेस अगर लिया तो इसका असर अपने हेल्थ पे होता है, पता है। तो अपने आप को उससे बाहर लेके जाना, Okay. यही उससे और कोई अच्छा। एक्टिविटीज, कोई गेम्स, गेम्स स्पोर्ट्स? आई एम डूइंग प्राणायाम योगा। मॉर्निंग में मैं हर दिन योगा और प्राणायाम करता हूँ, Okay, that एंड दैट helps. इज द बेस्ट रिलीफ फॉर मी फॉर ऑल दिस Okay. So ये practice really helps practice. you. Great. So now we proceed to our rapid fire round. I'll be asking you a few questions. You can either answer in one word or one sentence. Ready? Okay. One leadership quality that every young person should develop. Discipline. Discipline. Okay. One habit that keeps you disciplined. You have to work hard and sincerely. Okay. Are you a morning person or a night person? I'm a full morning and night because we don't have a specific time to work. So morning till night I have to work. All round. All on. Great. What is the one personality that who has influenced you deeply? Narendra Modi ji. Okay. And why? The way he worked for the country Selflessly. selflessly. That is Okay. true. Would you prefer tea or coffee? I'm not addict to that, but morning tea and in the afternoon coffee. Coffee. Which is your favorite Goan dish? Fish curry rice. Fish curry. Okay. And the final one is what is your one message for the youth of Goa?
मैसेज फॉर यूथ ऑफ गोवा, मुझे लगता है कि गोवा के यूथ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस देश के आगे वाले भविष्य है, और इसके लिए आपने हर क्षेत्र में काम करते समय एक गोल सेट करना चाहिए, और वही हिसाब से शॉर्टकट में नहीं गोल मिलेगा. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, एंड टू अचीव दैट गोल you have to work sincerely for that. Definitely, all youth will achieve such goals. Hmm. Okay, that is really powerful and loud. So now we move to the close of our Winning Brew podcast. And before we close, there are viewers, and you are the first guest on our podcast. And I think we are truly blessed by God to have you. So, what is the message that you want to give to all the viewers who are watching the podcast? Anything you want to say to them? First thing, I congratulate you कि आपने एक बहुत अच्छा concept किया, and the way Thank you. you asked me the question was very intellectual way you have said that all questions, Thank you. and I say best of luck to you in your future endeavors. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you so much. Thank And you. anything for the viewers who are watching? व्यूअर्स को क्या बता दे, व्यूअर्स को तो बताता हूँ कि सबका साथ चाहिए सबके लिए, इसके लिए, और जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, और ये विजन अचीव करने के लिए इस देश का हर आदमी का सपोर्ट चाहिए. ऐसा नहीं कि सब यानी किसी ने एक काम भी किया, किसी ने एनवायरनमेंट बचाने के लिए अगर एक पेड़ लगाया हो, किसी ने अपने इलाके में क्लीननेस ड्राइव की हो, किसी को सपोर्ट किया हो, किसी को मदद की हो, यही अगर सबने किया तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता. ही इज़ Yeah. ओनली अपीलिंग, एंड ही इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल कि आप सब एक साथ आइए हमारा देश आगे लेने के लिए, और हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए सबका साथ चाहिए, और सब आप देंगे, यही मैं आप सबसे मांग करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. Wow. Thank you. Thank you so much to our viewers who are watching the podcast. And now we are coming to the closing end of the Winning Brew this episode. So my only request to all of y'all is, as we end, if there's any feedback that you would like to give to us for any of the improvements you want to see in this podcast, please drop your comments down below and we'd be happy to work on it. Until then, see you next time. Thank you so much for watching. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank Thank you, sir, Thank you. so much. Thank you.